Hey there, welcome to the exceptional world of exception handling in Python. Exception handling is an essential feature of the programming, allows us to gracefully handle the errors and prevent our program from crashing. Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. I am Pradnya with the video in which we are going to cover the fundamentals of exception handling. Even we will get acquainted with handling different exceptions as well as raising exceptions. Along with that, to test our knowledge, we are going to solve some MCQs. By the end of this video, you will have the solid understanding how to handle the errors in your code effectively. Alright then, without much delay, let's get started. तो हम समझ लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पाइथन में कैसे करते हैं। जो भी कोडिंग सीखता है उसकी तो यही ख्वाहिश होती है कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ही विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ऐसा होता भी है तो हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एग्जीक्यूट योर कोड विदाउट एरर, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर. In general, we know error are the problems due to which the program will stop the execution. Yes, it is the same error when we execute the program and we get some problems which will force us to rethink that whether we should learn the coding or not. But don't worry, we will handle it. Errors are categorized into two types. The first is syntax error and the second is exception. In the programming world, errors and exceptions are used interchangeably, but there is a difference between the error and the exception. So what's the syntax error? Syntax error occur when the syntax is wrong. Syntax तो आपको पता ही है, ये हमारे रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, या फिर आप इसे ग्रामर भी बोल सकते हैं. अगर आपने कोई भी रूल करेक्टली नहीं लिखा तो आपको सिंटेक्स एरर मिल रहा होगा. सेकेंड टाइप ऑफ एरर होते हैं एक्सेप्शन. ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को हॉल्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स एरर. अगर हमने प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो नहीं किया है प्रोग्रामिंग का तो हमें सिंटेक्स एरर मिल जाता है. तो ये कुछ सिनारियो है जहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर मिल रही होगी, जैसे हमने कोलन मिस कर दिया विथ दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल. What's the problem with this? You can notice here the semicolon is missing. We did not follow the correct syntax, so we will get the syntax error. Even you can get syntax error when you are using keyword as a variable name. Look at this example. True is a keyword. So if we execute this program, we will get this syntax error. Let's consider the third scenario. Mismatch of quotes. There are double quotes in the beginning, but it is missing at the last. Let's try to execute these codes. You can see here we are getting the syntax error, invalid syntax because we miss semicolon. अब हम दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. हमें सिंटेक्स एरर मिल रही है और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, कैन नॉट असाइन टू ट्रू. और जब हम ये थर्ड कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी भी हमें सिंटेक्स एरर मिल रही है. सो इफ वी डोंट फॉलो द करेक्ट सिंटेक्स वी गेट द सिंटेक्स एरर. इस तरह हमने कुछ ही सिनारियो यहाँ पे कंसिडर किए जिससे हमें सिंटेक्स एरर मिल रही है. अब हम समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है. जो एरर्स रन टाइम पे ऑकर होती है उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है लॉजिकल एरर्स. सिंटेक्स अगर करेक्ट है तो भी हमें एक्सेप्शन मिल सकता है और हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं. So let's consider some of the scenario where you may get exception. In this example, we are trying to divide a number by 0. So when we will execute this program, we will get 0 division error. This is the name of the exception with the explanation. और एक सिनारियो हम कंसिडर कर लेते हैं. हम ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट करने जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जब हम इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर मिल रही होगी. ये भी एक एक्सेप्शन है और आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. अब थर्ड सिनारियो क्या है. हियर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस अ वेरिएबल दैट डजंट एग्जिस्ट. तो अगर हमने किसी वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश की जो कि हमने क्रिएट ही नहीं किया है तो हमें ये एक्सेप्शन मिल रही होगी. ये हमने कुछ सिनारियोज कंसिडर किए हैं. देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एंड दीज आर ऑल बिल्ट इन एक्सेप्शन, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में डिफाइंड है. तो आप तीनों एग्जाम्पल में ये नोटिस जरूर कर सकते हैं कि सिंटेक्स तो करेक्ट था लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्शन मिल रहा है. तो एक्सेप्शन हमें सिंटेक्स करेक्ट होने के बाद भी मिलता है. तो सिंटेक्स करेक्ट था लेकिन लॉजिक रॉन्ग है. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द एक्सेप्शन. दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शन लिस्टेड हियर. आउट ऑफ दीज हमने कुछ एक्सेप्शंस अभी कंसिडर किए हैं. तो हमने देखा हमें कैसे एक्सेप्शन मिलती है दो वी फॉलो द करेक्ट सिंटेक्स. तो हम अब देख लेते हैं कि इसे हैंडल कैसे करें.
वी यूज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो फर्स्ट ब्लॉक तो होता है ट्राई ब्लॉक। जिस भी कोड की वजह से एक्सेप्शन रेज होती है वो कोड हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होता है। सेकेंड ब्लॉक तो है एक्सेप्ट ब्लॉक। जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में रेज हुई है उसे हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। थर्ड ब्लॉक है एल्स ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में जो भी कोड हमने लिखा है उससे हमें कोई एरर जनरेट नहीं हो रही है, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। और एट लास्ट हमारे पास होता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक तो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है अगर एक्सेप्शन रेज हो रही है या नहीं। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमने सेम एग्जाम्पल को कंसिडर किया था जिसमें एक्सेप्शन रेज हो रही थी जब हम नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे। तो इस एक्सेप्शन को अब हम हैंडल करेंगे। जो कोड हमें एक्सेप्शन दे सकता है वो हमने ट्राई ब्लॉक में लिख लिया और एक्सेप्ट ब्लॉक में उसे हमने हैंडल कर लिया बाय प्रोवाइडिंग सम मैसेज। लेट्स चेक आउट दिस कोड। तो आप देख सकते हैं हमें एक्सेप्शन मिल रही है 0 डिवीजन एरर। तो अब इसे हमें हैंडल करना है। तो जिस भी कोड की वजह से हमें एक्सेप्शन मिल रही है वो कोड हम लिख लेते हैं ट्राई ब्लॉक में और उस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे होंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। हम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। आप देख सकते हैं हमें कोई भी एरर नहीं मिल रही है, हमें प्रॉपर पैसेज मिल रहा है जो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में प्रिंट किया था। हमने और भी कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए थे जो हमें एक्सेप्शन दे रहे थे। आपको अब इसी तरह इसे भी हैंडल करना है। जिस कोड की वजह से हमें एरर आ रही थी वो हमने लिख दिया ट्राई ब्लॉक में और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने प्रॉपर मैसेज प्रिंट कर दिया। सेम अप्रोच वी हैव टू फॉलो विद दिस कोड ऑल्सो। Let's execute this code. You can see here we are not getting any exception now. We consider one more scenario where we may get the exception. आप देख सकते हैं हमें नेम एरर एक्सेप्शन मिल रही है। अब हम इस एक्सेप्शन को भी हैंडल करेंगे विथ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं हमें नेम एरर की जगह पे अ प्रॉपर मैसेज मिल रहा है। इफ़ यू नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एक्सेप्शन दैट मे रेज, तो आप उसे एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद इसे मेंशन कर सकते हैं। इस कोड के केस में हमें मिल रही थी नेम एरर जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर आवर फर्स्ट कोड जहाँ हम 0 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें एक्सेप्शन मिल रही थी 0 डिवीजन एरर। अगर आपको ये नाम पता है तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ इसे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। It is getting executed in the same way. Now you know how to handle the exception with the try and except block. So try block के साथ हम एक से ज़्यादा भी except block लिख सकते हैं। एक except कीवर्ड के साथ हम एक exception मेंशन कर रहे होंगे। इस तरह एक से ज़्यादा exception भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई एक ही except block एग्जीक्यूट हो रहा होगा। Let's check out this example. हम ट्राई ब्लॉक में कोड लिख रहे हैं जिससे हमें एक्सेप्शन मिल सकती है। आपको पता है जब हम डिवाइड बाय 0 करते हैं तो हमें 0 डिवीजन एरर मिल रही होगी। तो जब एक्सेप्शन रेज होगी तो सबसे पहले कंट्रोल तो जाएगा फर्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। अगर हमें वो स्पेसिफिक एक्सेप्शन मिल रही है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमें फर्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में वो स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं मिल रही है तो कंट्रोल तो जाएगा नेक्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। फिर यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी। इस तरह ये कंटिन्यू होते हुए फिर जाएगा फाइनली एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिलती तो एट लास्ट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। That's why if we have multiple except block, we have to write the most specific one in the beginning, and then we can proceed by generalizing it. Let's execute this code and check out. You can see here we are getting the message which is mentioned in the first except block itself because we got that exception in the beginning. Let's remove this specific exception and check out. हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं मिलता तो फाइनली एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो इन केस इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द स्पेसिफिक एक्सेप्शन यू शुड राइट द नेम ऑफ दैट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड चेक आउट। अब आप देख सकते हैं इस केस में तो हमें
ज़ीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन मिलनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की थी। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो कंट्रोल इस ब्लॉक में आके हमें ये मैसेज मिल रहा है एक्सेप्शन ऑकर्स। अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें मिल रहा होगा नेम एरर। इस केस में आप देख सकते हैं हमें मिल रही है नेम एरर एक्सेप्शन, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। So if you want to handle a specific exception, you should write the name of it. So with the multiple except block, we have one more example. Here there is one list and we are trying to access the list element with the 10th index. You can see here it doesn't exist. So we will get the exception index error. आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लास्ट जनरल एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा है, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक ऑप्शनल होता है, वी कैन स्किप इट ऑल्सो. But when you are using try block, one except block should be there. You cannot skip that one except block. Let's execute the same code and check the output. You can see here we are getting index out of bound because the index error exception is getting raised. We are trying to access the element at the 10th index which doesn't exist. So till now we studied try block. We know now except block also. Then what about this else block? एल्स ब्लॉक तो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई एक्सेप्शन नहीं रेज्ड होती. हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं आफ्टर एक्सेप्ट ब्लॉक. अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक है तो सारे एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद ही हम एल्स ब्लॉक लिख रहे होंगे. तो चेक कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ. हमने लिख दिया कोड जिससे हमें एक्सेप्शन मिल सकती है. तो इस केस में आपको पता है एक्सेप्शन रेज हो रही होगी. तो एक्सेप्शन रेज होगी तो हम तो जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में, हम एल्स ब्लॉक में नहीं जा रहे होंगे इन केस ऑफ एक्सेप्शन. तो इसे अब हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिससे हमें एक्सेप्शन नहीं मिल रही होगी. तो एक्सेप्शन नहीं मिल रही है मतलब अब हम जा रहे होंगे एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में हमने इसे प्रिंट कर दिया है. जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये आउटपुट मिल रहा होगा. तो इससे हमें ये समझ में आ गया एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब एक्सेप्शन नहीं रेज होती. सो लेट्स क्रॉस चेक दिस कोड. यू कैन सी हियर एक्सेप्शन इज गेटिंग रेज, सो द एक्सेप्ट ब्लॉक इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, नॉट द एल्स ब्लॉक. अब हम इसे चेंज करके देख लेते हैं. हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से. अब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा और हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हमें उसका आंसर भी मिल रहा है. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में हमें ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक और एल्स ब्लॉक पता है. अब लास्ट ब्लॉक है जो हमें पढ़ना है, इसे कहते हैं फाइनली ब्लॉक. जिस कोड से एक्सेप्शन रेज हो सकता है वो हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में. अगर एक्सेप्शन रेज होती है तो हम आ जाते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में. अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर एक्सेप्शन रेज हो रही है या फिर नहीं हो रही है फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है. तो हम अपना सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं विथ फाइनली ब्लॉक. हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो रही है तो हम जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में. तो ये मैसेज हमें मिल रहा है एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन रेज हो रही है. उसके बाद फाइनली ब्लॉक तो प्रिंट होना ही है. तो हमें ये मैसेज मिल रहा है जो हमने फाइनली ब्लॉक में प्रिंट किया है. So same code with the finally block we are going to execute now. You can see here the exception is getting raised, so we got this message and the finally block is going to execute. हम इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और चेक करते हैं अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होती तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या नहीं. इन दिस केस एक्सेप्शन इज नॉट गेटिंग रेज्ड, सो द कंट्रोल विल कम टू द एल्स ब्लॉक. वी आर प्रिंटिंग द वेरिएबल, so we got this and the finally block is also getting executed. So got this message, this is finally block. In this way, whether the exception is getting raised or not, finally block is going to execute. So now with the knowledge of the exception handling, you can write your code error free. तो ये जो एक्सेप्शंस रेज हो रहे थे ये तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे. अगर हमने कोई इलीगल ऑपरेशन किया है तो अल्टीमेटली दैट बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर गोइंग टू रेज्ड. क्या ऐसी कोई अरेंजमेंट है जिससे हम अपनी कोई एक्सेप्शन रेज कर सके? फॉर दैट वी यूज रेज कीवर्ड. With the raise keyword, Python developer can choose to throw an exception if a condition occurs. So the programmer or the developer can also raise their own exceptions. Let's understand the concept of raising exception with one example.
Variable x is initialized with -1. Now with condition I can check it. If x is less than 0, अगर x is less than 0 है तो हमें चाहिए कि कुछ एक्सेप्शन रेज हो, तो हमने लिख दिया रेज। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे एक्सेप्शन, और हम मैसेज कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारी कंडीशन ये है कि नंबर्स लेस देन 0 नहीं होने चाहिए। 0 या फिर पॉजिटिव नंबर्स अलाउड है। तो अगर नंबर लेस देन 0 है तो हमें रेस करनी थी एक्सेप्शन, जो हमने रेस के हेल्प से कर दी है। अगर नंबर लेस देन 0 है तो हमें एक्सेप्शन मिल रही होगी। इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमें एक्सेप्शन मिल रही है, तो ये एक्सेप्शन है, और जो हमने मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह हमने बेस्ड ऑन आवर कंडीशन वी रेज द एक्सेप्शन। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं की है। देयर इज वन मोर एग्जांपल, लेट्स चेक आउट। हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज की है विद सम नंबर्स। हम चेक कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द नंबर्स मीन्स लेंथ ऑफ द लिस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है क्या। यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, तो लेंथ तो है 4। यस इट इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये एक्सेप्शन रेज हो रही होगी। हमें मैसेज मिलेगा लेंथ मस्ट बी लेस देन 3, यानी हमें ऐसे लिस्ट चाहिए जिसकी लेंथ लेस देन 3 हो। अगर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो हम रेज कर रहे हैं एक्सेप्शन। सो बेस्ड ऑन योर कंडीशन यू कैन रेज द एक्सेप्शन। Let's execute this code also. You can see here we are getting the exception length should be less than 3. We are getting this exception because the length of this list is greater than 3. If it will be less than 3, then we will not get this exception. You can see here we are not getting any exception. According to the portion for the session 23-24, exception handling पे हमें 1 मार्क का क्वेश्चन सैम्पल पेपर क्वेश्चन में मिल रहा होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 23-24. We have to tell whether this statement is true or false. So what's the statement? Exception may be raised even if the program is syntactically correct. हाँ, exception raised होती है even if the program is correct according to the syntax. So this statement is true. Let's check out the next question. In which block you write block of code for errors? हम लिख रहे होते हैं वो ट्राई ब्लॉक में जिस कोड की वजह से एक्सेप्शन रेज हो सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू टेल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हम डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वेरिएबल को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इट विल रेज द एक्सेप्शन। सो वी विल कम टू द एक्सेप्ट ब्लॉक वेयर वी आर प्रिंटिंग दिस मैसेज। सो दिस विल बी आवर आउटपुट, विल गेट द मैसेज एंड एक्सेप्शन ऑकर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एक्सेप्ट ब्लॉक कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। सो 0 तो नहीं हो सकता, एक ब्लॉक तो होना ही चाहिए। एक ब्लॉक हो भी सकता है लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मोर देन 0। मोर देन 0 मतलब 1 ब्लॉक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू टेल विच टाइप ऑफ एरर विल बी रेज्ड। अगर हम कोड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोलन मिसिंग है, तो इस केस में तो हमें जनरली मिल रही होगी सिंटेक्स एरर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सबसे पहले हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है प्रिंट 5, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस कोड, 5 प्रिंट हो जाएगा। देर इज़ नो एक्सेप्शन, तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएंगे, हम डायरेक्टली आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में हमने लिखा है एक्सेप्शन इज़ नॉट रेज्ड, तो हम ये मैसेज प्रिंट कर रहे होंगे। लास्ट में तो होता है फाइनली ब्लॉक, इसमें जो भी कोड होता है वो तो एक्सेप्शन रेज हो रही है या फिर नहीं तो भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो फाइनली हमें मिल रहा होगा ये आउटपुट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, हम इसे प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें ये आउटपुट मिल रहा होगा।
You can see here there are multiple except block, बट एक्सेप्शन तो रेज हो ही नहीं रही है, तो हम तो किसी भी एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएंगे. हमारा आउटपुट ये होगा 10.2. जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था उसे प्रिंट कर रहे हैं. हमने ऐसा कोई कोड लिखा ही नहीं जिससे एक्सेप्शन रेज होगी, तो हमें ये आउटपुट मिल रहा होगा. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के लिए सेक्शन ए में मिल रहे होंगे. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So, in this way, we covered all the aspects of exception handling in Python. Thank you for watching this video. If you found this helpful, share with your friends. And here is a little sneak peek of what's coming in the next video. We will be exploring the most fascinating data structure, stack. We will learn how stacks work and implement them in Python. So till then, keep studying, stay healthy. I will see you in the next video.